Hello students, how are you? So today we are going to starting with a chapter improvement in food resources. So without wasting any time, let's get started. So first let's see what does these terms mean. We are talking about improvement in food resources. That means जो भी हम food जितने भी food resources होते हैं हमारे पास में उन सब के improvement की we are talking about here. कि हम उनको किस तरीके से improve कर सकते हैं उन food resources को जो भी हमारे पास present है. So let's start. First of all, we are going to know some learning concept कि हम इस chapter में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. First thing we are going to learn in this chapter is the introduction. I'm going to give you a brief introduction about how we can improve the food production and how the things work. The improvement in crop yields, crop variety improvements, crop production management, nutrition management, irrigation, the cropping pattern, the crop protection management, animal husbandry, cattle farming, poultry farming, and fish production, and beekeeping. So let's start with our first introduction, that what exactly we understand by the improvement in food production, or what we are going to understand in this chapter. As you know that there are millions and billions of people in our earth, so many organisms in our earth, right? So many plants, so many billions and millions of animals, so many human beings, right? There are so many organisms in our earth, and all these organisms need food for their living or for their survival. We need food so that we can get energy, and if we don't get energy and if we are going to do any activity, we will not be able to perform that activity, because if we lack food, we can't generate energy and we can't do any activity. So as you all know that food contains so many different components, and these components are, and the main component of the foods are the fats, carbohydrate, proteins, vitamins and minerals. As you all know that food contains the proteins, the vitamins, the carbohydrates, the minerals all required by our body. ये अपन को चाहिए क्यों होते हैं? Food में why we need all these things? Because we need all these things for the body development, growth and health. Now what are the major sources of food? Let's discuss them कि हमारे पास exactly food आ कहाँ से रहा है, right? So the major sources of food are, first of all, the plants. As you know कि these all plants, the vegetables, the fruits, these all are the major source. Normally हम हमारी daily life में किनको use करते हैं? हम खाते हैं plants को. And then we have animals. Animals से हमें क्या मिलता है? We get meat, we get butter, we get cheese, right? We get eggs, we get so many things from animals too. We obtain most of this food from agriculture. Most of food अपन को majorly कहाँ से मिलता है? Agriculture से मिलता है and animal husbandry से मिलता है. Agriculture अगर हम करेंगे, we are going to get the plants, the vegetables, the fruits, and अगर हम animal husbandry करेंगे, we are going to get all these things, the meat, the fishes, or we can say the cheese, the milk and eggs, etc. We all know that the population is growing day by day. More than a quarter, or we can say the quarter of a billion tons of grain require every year. You know that कि अपनी इंडिया की population more than a million billion बढ़ती जा रही है धीरे धीरे. So अब इतनी सारी population के लिए we are gonna need so much food, right? क्योंकि अभी जो हम food production कर रहे हैं उससे तो सिर्फ अभी की जो आज we can say कि अभी का जो time है उसके लिए it is good.
बट अब जो हमारे आगे जो बढ़ती जा रही है जनरेशन, द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे, दिन ब दिन बहुत पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. सो मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स. तो इतनी पॉपुलेशन के लिए अपन को क्या चाहिए होगा? मोर देन अ क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर. हर साल अपन को इतना ग्रेन चाहिए ही चाहिए होगा, फूड चाहिए ही चाहिए होगा इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए अपने इंडिया की. Food requirement for people can be fulfilled by farming on more land. अब ये जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अब हमको बहुत ज़्यादा फूड भी नीड है. अब ये जो हमको ग्रेन की नीड है, इसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं? तो ये जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है, हम इसको फुलफ़िल कर सकते हैं बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे फार्मिंग करके, isn't it? But India is already intensively cultivated. Right? This is a very important point कि हम कर तो सकते हैं बहुत ज़्यादा फार्मिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली और लैंड्स पे, और जिस पे कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट उसके अलावा भी हम और लैंड पे भी कर सकते हैं फार्मिंग. बट इंडिया जो है वो ऑलरेडी क्या कर रहा है? इंटेंसिवली कल्टिवेशन कर रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो लैंड का इस्तेमाल कर रहा है कल्टिवेशन के लिए. एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. दैट मीन्स कि इसके लिए कोई अब अपने पास स्कोप नहीं है कि और कितना अपन एरिया बढ़ा सकते हैं. राइट? ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेशन हो रही है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है लैंड. राइट? सो अब एज अ रिजल्ट ये है कि जो मेजर स्कोप है वो इंक्रीज नहीं हो सकता है, लैंड तो अपन ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. Therefore it is necessary to increase our production. अब जब अपन लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं तो दूसरा मेथड अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? सो वी आर गोइंग टू यूज इज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी. हम इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को फॉर बोथ द क्रॉप्स एंड द लाइव स्टॉक. क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक दोनों के लिए हम क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, द एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड. कौन कौन से एफर्ट्स किए गए थे फूड डिमांड को पूरा करने के लिए? राइट? हमने क्या किया? लैंड हम ऑलरेडी इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्शन है अब हमने उसको धीरे धीरे हमने उसको एफिशिएंट करने के लिए इस्तेमाल शुरू किया है हमने. राइट? अब हम और क्या एफर्ट कर सकते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन, ये दो एफर्ट्स किए गए अपने इंडियंस द्वारा. लेट्स सी एंड लोगों द्वारा कि देखते हैं ये एफर्ट्स में उन्होंने किस तरीके से फूड डिमांड को मीट किया. First was the green revolution and these are very important. The green revolution and the white revolution, you can mark these क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं. First of all, green revolution में क्या होता है? Increased food grain production. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन. ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उगा रहे हैं वो फूड ग्रेन्स को. राइट? देन वी हैव वाइट रेवोल्यूशन. वाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? हम बेटर एंड मोर इफेक्टिव वे यूज एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क. ये वाइट रेवोल्यूशन और भी एक ऐसा मेथड था जहाँ पे और भी बेटर तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है एंड बहुत ही एफिशिएंट यूज़ हो रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क का. दैट मीन्स कि एज वेल एज जितना हो सके उतना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे काउज वगैरह से. अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क भी यहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन में effectively increase हुई थी. Now let's see here, as you all can see, our natural resources are getting used more intensively. अपने natural resources जो हैं वो बहुत ज़्यादा intensively, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्तर पे अब यूज़ होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं. As a result there are more chances of causing damage to our natural resources. That means अपन इतने ज़्यादा natural resources को इस्तेमाल करते जा रहे हैं कि अपन इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि sustainable development, we need to know, we need to do sustainable development, but what we are doing is we are just intensively producing the crops. हम natural resources को बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं. As a result, there are more chances of causing damage to the natural resources to the point of destroying their balance completely. इस तरीके से अपन यूज़ करे जा रहे हैं. Like as you all can see here कि कभी कभी आपने एक एग्जाम्पल देखा है कि घर में है तो सिर्फ 3 ही लोग, बट उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा घर बना लिया है.
राइट इतना बड़ा इतनी बड़ी स्टोरी का उन्होंने, दे हैव मेड अ हाउस, जबकि दे आर ओनली 3 पीपल. देयर आर सो मैनी पीपल जो क्या करते हैं अपने लिए, एक उनको नॉर्मली एक इंसान को खाने के लिए एक फिश चाहिए, राइट, पर वो क्या करेंगे, वो फिश ले रहे हैं, कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, बट कभी कभी ग्रीड की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं. अगर वो चाहते तो एक फ़िश से काम चला सकते थे, बट नहीं, उन्होंने क्या किया, और भी ज़्यादा फ़िश कैच की. एंड कई बार ऐसा होता है कि वो लोग ग्रीड के चक्कर में ये सब काम करते हैं. दैट्स इस वजह से भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ग्रीड की वजह से भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. Our natural resources are getting used more intensively. As a result, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि जब अपना जो बैलेंस है completely destroy हो जाएगा. Now what balance we're talking about here? As you can see, यहाँ पे एक इंसान फार्मिंग कर रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, यहाँ पे अपन स्कूल जाते हैं, रहते करते हैं, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है. ओके, सो let's see the next point, which is saying that therefore it is important that we should increase food production. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बाग नेचुरल रिसोर्सेज को और तरीके से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं. हमको यहाँ पे मेनली क्या करना है, वी शुड इंक्रीज़ द फूड प्रोडक्शन. अपनी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए अब हमको फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट. पर एक चीज़ का ध्यान रखते वक्त, पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा, फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, बट द थिंग वी नीड टू नो हेयर इज़ विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करे बिना, ख़त्म करे बिना, नुकसान पहुंचाए बिना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ मेंटेनिंग इट. एंड हमको कभी भी अपना नेचुरल का जो हमारा नेचुरल साइकिल है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको बिना डिस्ट्रॉय करें हमें फूड प्रोडक्शन करना चाहिए. तभी हम आगे जाके ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है. नहीं तो एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंसिंग मेंटेनिंग इट, हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के एंड नेचुरल रिसोर्सेज के. There is a need for sustainable practices. इस बात को बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखिए कि हमको किस चीज़ की इम्पॉर्टेंट है. हमें अभी किसकी सबसे ज़्यादा नीड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, व्हाट इज़ एग्जैक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है इस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना कि आगे जाके भी जो अपनी जनरेशन है अपन उसको क्या करें, उनके लिए भी वो सेव्ड हो, उनके लिए भी वो चीज़ हो. ऐसे नहीं कि हमने क्या करा, जितना भी हमारे पेड़ पौधे हैं हम उन्हें ख़त्म करे जा रहे हैं, हर चीज़ को कुछ ज़्यादा ही यूज़ करे जा रहे हैं. लाइक देयर आर सो मैनी एनिमल स्पीशीज़ और वी कैन से फिश स्पीशीज़ विच आर एक्सटिंक्टिंग. वाई? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो वी नीड टू नो दैट थिंग कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. एग्रीकल्चर में एंड एनिमल हस्बेंड्री में हमें ध्यान रखना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल चीज़ का. फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ. जो फूड सिक्योरिटी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे एंड एक्सेस टू इट. कितना तो आपके पास खाना अवेलेबल है एंड कितना उसमें से आपको मिल रहा है. अपने अर्थ में कितना तो आपके पास, या फिर वी कैन से कि कितना तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो एंड कितना उसमें से आपको एक्सेस हो रहा है, कितना आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं. The majority of our population depends on agriculture for their livelihood. So जो majority of जो population है, जो majority of the population है वो depend करती है agriculture पे, उनके livelihood के. Most of जो people हैं वो क्या खाते हैं, most of the people vegetables and fruits consume करते हैं. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from farms. बहुत सारी scientific management practices अपन को use करनी चाहिए ताकि क्या हो, high yield आए farms में. जितना हो सके उतनी yield आए, जितनी हो सके उतनी quantity की we are talking about, और अच्छी yield आए. Here as you can see, यहाँ पे कितनी अच्छी फिशेस दिख रही है एंड कितनी ज़्यादा दिख रही है, राइट. हियर यू कैन सी द एनिमल्स, यू कैन सी हियर, एंड यहाँ पे अपने पास हनी बी शो हो रही है, राइट. सो सस्टेन्ड livelihood we are going to talk about here.
वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। एक अगर अपन को सस्टेनेबल लाइवलीहुड करना है, सस्टेनेबल तरीके से जीना है, तो हमें क्या करना चाहिए? वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। दैट मीन्स अलग अलग चीज़ों की फार्मिंग करनी चाहिए उनको इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली हुई एक साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विथ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। दैट मीन्स एक इंसान अगर पाल रहा है हैंड्स वगैरह को भी, तो उसको बी कीपिंग वगैरह भी करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए, राइट। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस सबको इस्तेमाल करनी चाहिए। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.